मीर का जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। बागे हिंदुस्तान का हर फूल, हर पत्ता, हर बूटा हमेशा मीर का गर्विदा रहा। मीर तकी मीर पर फिदा रहा। कहते हैं कि उनके जैसा शायर न कभी हुआ न होगा। तो साहिबान, बात मीर की शायरी और जिंदगी की तो सभी अक्सर करते हैं, इसलिए चलिए आज कुछ बात मीर के साथ जुड़ी लोक कथाओं की और कुछ मौसीकी और रक्स की रवायत की भी आज करते हैं। कहते हैं कि रंगीले बादशाह मोहम्मद शाह के दौर में रक्स को दरबार में बहुत उरूज हासिल हुआ और यही दौर गजल के बढ़ते उरूज का भी दौर है। 18वीं सदी में दिल्ली के शायरों ने फन गजल में ऐसा कमाल पैदा किया कि मीर के दौर में जब दूर दराज के मुसाफिर और सैलानी दिल्ली आते थे तो उनके दोस्त अहबाब, संगी साथी, हमसाए दिल्ली से कुछ नया लेकर आने की फरमाइश किया करते थे। इतनी जल्दी में क्यों? ये भी नहीं देखते कि हम भी खड़े हैं राहों में। अरे चचा जान बताया तो था कि दिल्ली सफर पर जा रहा हूँ और चलने से कबल चची जान को सलाम पेश करने आया था। जरूर जाओ, खुदा की अमानत में दिया तुम्हें। और हाँ, वो मेरी फरमाइश याद रखना। हिंदुस्तान के दीगर इलाकों के लोग दिल्ली जाने वालों से एक फरमाइश हमेशा करते थे। कहते थे कि लौटते वक्त मीर की ताजा गजल जरूर लेते आना। ताजा तरीन गजल जैसे ही लोगों तक पहुंचती थी तो लोग बेकरारी के आलम में उसे पढ़ते थे, आंखों से लगाते थे और पढ़ते पढ़ते जबानी याद कर लेते थे, गुनगुनाते जाते थे और गाते जाते थे। गाने वालियां नई गजलों की तलाश में रहती थीं और ताजा गजलों को हासिल करने में एक दूसरे से बाजी मार लेना चाहती थीं। मीर के वालिद एक सूफी दरवेश थे। अक्सर जज्ब के आलम में रहते थे। 9-10 साल की उम्र के बेटे से एक दिन यूं गोया हुए। बेटा, ये दुनिया माया के हंगामे से ज्यादा नहीं। दुनिया से दरके ताल्लुक करो,
بس عشق کرو، عشق الہی کو اپنا پیشہ کرو، عاقبت درپیش ہے اندیشہ کرو۔ جو اصلی فقیر ہے جانتا ہے دنیا حقیر ہے، تلاطم خیز پانی پر کھینچی ایک لکیر ہے۔ زندگی ایک وہم ہے، وہم کی بنیاد پر امیدوں کے محل پانی پر بنانا، پانی کو رسی سے باندھنا اور چاندنی کو گزوں سے ناپنا ہے۔ لہذا بس اس کی طرف دیکھو، عالم کو جس کا آئینہ کہتے ہیں، اپنی ذات کو اسے سونپ دو جسے دل میں تلاش کرتے ہیں۔ والد کی بات میں نے پلے سے باندھ لیا، طرز فکر طرز زندگی بنا، بار بار اس خیال کو شعر میں بھرتا، پھر بھی تشفی نہ ہوئی تو شعلہ عشق نام کی مثنوی میں لکھا۔ محبت میں ظلمت سے کاڑا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور۔ محبت مسبب محبت سبب، محبت سے آتے ہیں کارے عجب۔ محبت ہے آبے رخے کارے دل، محبت ہے گرمی آزار دل۔ محبت عجب خواب خوریز ہیں، محبت بلائے دل آویز ہیں۔ محبت لگاتی ہے پانی میں آگ، محبت سے ہے دیگ و گردن میں لاگ۔ محبت اس کارخانے میں ہے، محبت سے سب کچھ زمانے میں ہے۔ مجھے یاد میں 10-11 سال کا تھا جب والد صاحب نے کہا تھا جلدی کرو بیٹا، انسان کے پاس بہت کم فرصت ہے، بس چند لمحے کی مہلت ہے، جلدی کرو، اپنے آپ کو، اپنے اندرون کو اپنے تئیں پہچانو۔ بیٹا، اس گل کی بلبل بنو جو ہمیشہ بہار ہے، صرف وہی لکھو جس کے لکھنے سے اس کا بیڑا پار ہے۔ بیٹا، عشق کرو، عشق آدمی کو انسان بناتا ہے، عشق آدمی کو انسان بناتا ہے، عشق بناتا ہے، سجاتا ہے، سنوارتا ہے، عشق کندن کر دیتا ہے۔ آگ عشق کی پکار ہے، للکار ہے، پانی عشق کی رفتار ہے، خاک عشق کا قرار ہے، ہوا اس کا اضطرار ہے، موت عشق کی مستی ہے، زندگی عشق کی ہوشیاری ہے، رات عشق کا خواب ہے، دن اس کی بیداری ہے، مسلمان عشق کا جمال ہے، کافر عشق کا جلال ہے، نیکی عشق کی قربت ہے، گناہ عشق سے دوری ہے، جنت عشق کا شوق ہے، دوزخ عشق کا ذوق ہے۔ آسمان میں ستاروں اور سیاروں کی گردش بھی حرکت عشقی ہے،
بیٹا عشق کا مقام عبودیت و عرفیت و ذاتیت و صدیقیت و خلوصیت و مشتاقیت و حبیبیت سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ والد صاحب نے جو تصور دل میں بسا دیا، میں نے بس اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ جب بھی وحشت کا اثر بڑھا تو بارہا خود کو سمجھایا، راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، یعنی غافل ہم چلے سوتا ہے کیا، سبز ہوتی ہی نہیں ہے سرزمین، تخم خواہش دل میں تو ہوتا ہے کیا۔ اور پھر یہ بھی احساس ہوا کہ یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ تبھی تو میں نے ایک روز کہا، عشق ایک میر باری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کہ جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ میر کو لڑکپن میں سیلینوفیلیا ہو گیا تھا۔ سیلینوفیلیا یعنی چاند سے عشق ہو گیا تھا۔ اپنی آپ بیتی میں تفصیل سے اس واقعے بلکہ مہینوں پر محیط اس معاملے کے بارے میں انہوں نے کہا، جو دایا بچپن میں میرا منہ دلاتی تو میرے منہ کو دیکھ کے چاند چاند کہا کر، پھر میں دیر تک چاند کو دیکھتا اور سوچتا کہ چاند اور مجھ میں کیا مماثلت ہے۔ اسی کیفیت کے بڑھنے سے میں چاند کے عشق میں گرفتار ہوں۔ نظر رات کو چاند پہ جا پڑی تو گویا کہ بجلی سے دل پر پڑی، توہم کا بیٹھا جو نقشے درست، لگی ہوں نے وسواس سے جان سست، نظر آئی ایک شکل مہتاب میں، کمی آئی جس سے خور و خواب میں، اگر چند پرتو سے مہکے ڈروں ولیکن نظر اس طرف کی کروں۔ اور پھر بارہا یہ ہوا کہ چاندنی رات میں ایک پیکر ایک خوبصورت کامل خوبی سے چاند سے نکل کر میرے پاس آتا اور مجھے بے خود کر دیتا تھا۔ پھر جدھر بھی میری نظر اٹھتی اسی رشتے کمر پر پڑتی، جو بھی دیکھتا ہر جا بجا اسی غیرت حور کا تماشا ہوتا، تمام عالم میں وہی چہرہ نظر آتا جو کبھی 14ویں کے چاند کی طرح سامنے ہوتا، کبھی ستاروں کے نور میں کھو جاتا اور کبھی دل میں سنگیت کی بازگشت بن کر نمودار ہوتا تھا، کبھی ٹھنڈی ہوا کی طرح دل کو تھپکیاں دے کر سلا دیتا، کبھی دل کی دھڑکن بن جاتا اور کبھی غم کی چمن بن جاتا، ہر رات اس سے صحبت رہتی، ہر صبح اس بن گشت، جب
दिन की रोशनी आती तो वो एक आह भरकर मजबूरन चांद की तरफ वापस चली जाती और उसके फिराक में दिन भर जहान धोकर रहते। जब इस जुनून की खबर दूसरों तक पहुंची तो दवा इलाज और जाड़ फूंक की जुस्तजू की गई। 4 महीने यही थे। फिर जब बहार रुखसत हुई और खरीद का मौसम आया तो ये जुनून निकल गया। जुबान सबूत से आशना हुई और बदखौफी जाती रही। वो नक्श जो बहन ने दिल पर बिठाया था सफाए दिल से मिट गया और जुनून से जो सबक पड़ा था वो खामोश गया। कहाँ तो हम चांद को देखने के लिए शाम तक का इंतजार करते, लेकिन अब शाम के आते ही उदास हो जाते। तभी तो मैंने एक रोज कहा दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, हमें आपसे भी जुदा कर चले। मीर तकी मीर ने बेवजह नहीं लिखा कि मुझको शायर न कहो मीर के साहब मैंने, मुझको शायर न कहो मीर के साहब मैंने, दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। के साथ थे राजा जुगल किशोर और राजा नागरमल की फौज में भी शामिल रहे। उन्होंने अपनी आंखों से नादिर शाह और अब्दाली के जुल्म देखे, कत्लेआम देखे, करीबी लोगों को जंगों में मरता देखा, बादशाहों को फकीर बनते देखा। तभी तो अपनी आपबीती में कलम को खूने दिल में डुबोकर लिखा। ये दुनिया अजब हादसा गाह है, ये दुनिया अजब हादसा गाह है कि हर दिल में बस आह ही आह। कैसे कैसे शहर उजड़ गए, कैसे कैसे जवान मर गए और कैसे कैसे बाग वीराने हो गए, कैसे महफिलें अफसाना हो गई, कैसे फूल मुरझा गए, कैसे जवान गुजर गए और कैसे काफिले कूच कर गए, कैसे अजीज खौर हुए। इसके बाद मेरी आंख ने क्या क्या देखा और इन कानों में क्या क्या सुन लिया। हर कासाए सर किसी ताजे सर की कहानी कह रहा है और हर उजड़ा हुआ मकान एक निशानी है। ये दुनिया एक कहानी है जिसका कुछ हिस्सा हमने बयान कर दिया, बाकी जो रह गया वो अब और कोई सुनाएगा, वो अब और कोई सुनाएगा। मीर को अपने शहर पर, अपने अंदाज पर, अपनी जबान दानी पर नाज था। उन्होंने कभी किसी को अपने बराबर का शायर नहीं माना था। अब लखनऊ पहुंचे तो वहां तो हर इंसान छोटी छोटी बातों पर इतरा रहा था। मीर जैसे नाजुक मिजाज इंसान का पारा ये देखकर आसमान पर जा पहुंचा। लखनऊ के नखीले लोगों ने जब एक तुनक मिजाज इंसान को मुशायरे में बैठे देखा जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने दे रहा था तो एक सांप से नहीं रहा गया। उन्होंने पूछ ही लिया। मीर को अपने शहर पर आप कौन
जनाब कहाँ से तस्वीर लाए? क्या बूझो हो पूरब के भासियों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहने के मुंतखब ही जहाँ रोजगार, जिसको पलट ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी ही उजड़े गया। कहीं हम शहंशाह गजब मीर पति मीर तो नहीं है? जिन्हें रमदास का खिताब दिया गया। हजरत, मेरी आंखें खुशकिस्मत में कि आपका दीदार नसीब हुआ। लखनऊ क्या, हिंदुस्तान का हर शख्स ये मानता है कि आपसे बड़ा शायर कोई पैदा नहीं हुआ। यार, बड़े से बड़े उस्तादों ने भी आपको उस्ताद तस्लीम किया है। सब देते हैं मीर को जगह अपनी आंखों, इस खाके रहे इश्क का एजाज तो देखो। क्या इस वास्ता को आपको होश में इतना पसंद है कि क्या कहूँ, कोई तुझसा भी काश तुझको मिले, मुद्दा हमको इंतकाम से। तुम नहीं फितनादार, फितनतदार, शहर पर शोर इस गाँव। शेर मेरे हैं सब खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से। शहर है मीर का समझना क्या, हर सुखन उसका एक मकाम से है। अगर आप इजाजत दें तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप किस शायर को किस ये लफ्ज आपने बस 2 बार इस्तेमाल किया। चुनांचे मेरे नाचिस ख्याल में हिंदुस्तान में बस 2 ही शायर हैं। बस दो? जी बताया तो मिर्जा ने बस को। क्या अब ये भी फरमाइए कि वो पहले शायर कौन है? पहला मैं और कौन? सनद के तौर पे अपना ही शेर पेश कर सकता हूँ। सारे आलम पर हूँ मैं छाया, मुस्तनद है मेरा फरमाया। मुस्तनद है। जी हाँ ये तो घर मेरा शम्स है कि पहले आप ही हैं, लेकिन अगर आप इजाजत है तो हम जानना चाहेंगे कि वो दूसरे शायर कौन है? दूसरा अपना सौदा। जानी और कोई नहीं। चलिए आप जिद करते हैं तो आगे ख्वाजा मीरदर्द, यही डाय शायर मेयार के हैं। और बाकी मेरा मतलब बाकी शायर बाकी सब आप जैसे हैं। जनाब, मुकम्मल गजल की दरख्वास्त की जसारत हम सब मिलकर करना चाहते हैं, फिर पता नहीं आपका दीदार कब नसीब हो। सच बहुत कम नजर आता है क्या हो जो ये मीर कहता है, बहुत कम नजर आता है आलमाई है
किस्मत उस बज़्म में लाई कि जहाँ का साथी। किस्मत उस बज़्म में लाई कि जहाँ का साथी। क्या किस्मत उस बज़्म में लाई कि जहाँ का साथी। दे है मैं सबको हमें ज़हर सबको हमें ज़हर पिलाता है मियाँ। क्या फरीक़ा है जुरातों को जगावे क्या फरीक़ा है जुरातों को जगावे शाम से दिल जिगरो जान जलाता जिगरो जान जलाता है मियाँ। शहरों मुल्कों में जो ये मीर कहता है मियाँ। इतनी है बहुत कम नजर आता है मियाँ। ये है कि मीर की शायरी दर्द व गम, रंजो अलम, पै दर पै हादसों और मुसलसल जारी आंसुओं की दास्तान बयान करती है। मीर का हर शेर एक आंसू है और हर मिसरा खून की बूंद। फरमाते हैं, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता। गम की कसक, इश्क की तड़प को कोई मीर से सीखे। ऐसा लगता है कि सीने में एक आग की भट्टी रोशन है। रोते फिरते हैं सारी सारी रात, रोते फिरते हैं सारी सारी रात। अब यही रोजगार है अपना, अब यही रोजगार है अपना, अब यही रोजगार मीर खामोश तबीयत इंसान थे, नहायत नाजुक मिजाज थे। जरा सा भी हंगामा या शोर शराबा पसंद नहीं करते थे। मीर का ये शेर उनकी तबीयत का आईना था। सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी दुख रोते रोते सो गया है। जब मीर का इंतकाल हुआ तो लखनऊ में यही शेर उनके मजार पर लिखा गया। किसने सोचा था कि अंग्रेजों के जरिए जब एक दिन मुल्क में रेल की पटरियों का जाल बिछाया जाएगा तो मीर तकी मीर का मजार दो पटरियों के बीचों बीच आ जाएगा और हर 2-3 मिनट के बाद
शोर शराबे का तूफान इस नाजुक मिजाज शायर के सर से होकर गुजरेगा, जिसने कहा था, सरहाने मीर के कोई न बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। खैर बदकिस्मती ये कि लखनऊ में अब उस आखिरी यादगार का भी कोई अता पता नहीं मिलता। उनकी एक गजल जो उनकी जिंदगी की कहानी कहती महसूस होती है, लखनऊ में आज भी रक्स के पैराहन में देखी और सुनी जाती है। यानी उल्टी हो गई सब तदबीरें।